السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، تسبیح و تعلیل اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بعد درود و سلام نازلوں تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم. قابل قدر سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان اسلام، پس پردہ خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو درس رکھا گیا ہے، اس درس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رمضان کے احکام اور مسائل کو سیکھ لیں. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو ایک نہایت عظیم مقصد کے تحت اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، جس سے ہم اچھی طریقے سے واقف ہیں. لیکن بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اس عظیم مقصد سے غافل ہیں اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ عظیم مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا. ہر کوئی جانتا ہے دنیا کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. لیکن بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی کما حق ہوئی عبادت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات قرآن اور حدیث کے اندر ملتی ہیں. اللہ رب العالمین کی جہاں بہت ساری صفتیں ہیں، ان صفات میں سے اللہ رب العالمین کی دو صفات بڑی ہی اہم ہیں. پہلی صفت ہے رحم و کرم کرنے کی صفت، اور دوسری صفت ہے غضبناک اور غصہ ہونے کی صفت. یہ دو صفت بڑی اہم ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین جہاں اپنے بندوں پر رحیم اور کریم ہے، رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین اپنے نافرمان بندوں پر غصہ کرنے والا، غضبناک ہونے والا بھی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا سورہ ہجر کے اندر، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، میرے بندوں کو آپ خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اور بہت ہی زیادہ میں رحم کرنے والا ہوں. لیکن اگر بندہ گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد مجھ سے مغفرت نہ طلب کرے، تو ایسے بندوں کو یہ بھی خبر دے دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ میرا عذاب بڑا ہی دردناک عذاب. جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں غفور الرحیم ہوں، وہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا اگر تم میری معصیت سر چڑھ کے کرتے رہو اور مجھ سے معافی اور بخشش طلب نہ کرو تو سن لو میرا عذاب بڑا ہی دردناک ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے رحم و کرم کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے غیظ و غضب اور اپنے غصے کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے. لیکن ان دو صفات میں، رحمت اور غیظ و غضب، ان دونوں صفات میں رحمت کی جو صفت ہے اللہ رب العالمین کی، یہ صفت غیظ و غضب والی صفت پر بھاری ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غیظ و غضب، میرے غصے پر سبقت کر چکی.
यानी गालिब आ चुकी है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत। और इस रहमत का मजहर हम शरीयत मुतहरा के अहकाम पर अगर हम गौर करें तो बहुत सारे ऐसे अहकाम हैं जिनमें अगर हम गौर करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये रहमत की सिफत जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैज़ो गज़ब वाली सिफत पर गालिब है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा है जो नेकी करने का इरादा करता है, दिल में सोचा है कि मैं नेकी करूंगा, लेकिन अभी वो नेकी नहीं किया है, सिर्फ इरादा किया है, अमल नहीं लाया है, अमल में नहीं लाया उस नेकी को, अल्लाह रब्बुल आलमीन फकत इरादा करने की वजह से उसके नामे आमाल के अंदर एक नेकी लिख देता है। बताओ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत कितनी वसी है। हम अमल नहीं किए हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर भी हमारे नामे आमाल के अंदर एक नेकी लिख देता है। वहीं पर अगर कोई बंदा ऐसा है जो गुनाह करने का इरादा करता है, लेकिन जब तक बंदा गुनाह कर ना ले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नामे आमाल में गुनाह नहीं लिखता है। ऐसे ही बंदा एक नेकी करता है, एक नेकी का मुस्तहिक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा, एक नेकी 10 के बराबर, 10 नेकी 70 के बराबर, 70 नेकी 700 के बराबर, और 700 से भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को नेकी और अजर अता करता है। जब बंदा मुखलिस होकर के इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ाजुई के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए अमल करता है तो अल्लाह उस अमल पर 700 से कहीं ज्यादा अजर दे देता है। और अगर हम गौर करेंगे जो महीना आने वाला है रमजान का, इस रमजान के महीने का एक रोजे का कितना सवाब है हम तसव्वुर नहीं कर सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। एक हदीस देखें, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन साम यौमन फी सबीलिल्लाह, जो भी बंदा अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए एक दिन का नफली रोजा रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरे को जहन्नम की आग से 70 साल की मसाफत के बकदर दूर कर देता है। इतना दूर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के चेहरे को जहन्नम की आग से कर देता है जब बंदा एक दिन का रोजा रखता है, और वो भी नफली रोजा रखता है। तो फर्ज रोजे का फिर क्या कहना कि कितना अजीम, कितना बड़ा अजर और सवाब का मुस्तहिक वो बंदा हो सकता है जो रमजान मुबारक के महीने को पाए और फिर इनके 30 दिन के रोजे का मुकम्मल एहतमाम करे। गुज़िश्ता दर्स के अंदर बहुत सारी बातें हमने कुरान और हदीस की रोशनी में सीखी थी। जहां पर हमारी गुफ्तगू खत्म हुई थी मैं वहीं से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आखिर में एक सवाल आया था कि क्या पूरी दुनिया के लिए एक ही चांद का एतबार होगा या हर मुल्क के लिए अलग अलग चांद का एतबार होगा। तो इस सिलसिले में सही मौक़िफ़ यह है हर शहर के लिए अलग अलग रुयत है, इख्तिलाफे मकाले का एतबार होगा। सऊदी के लिए अलग चांद है, अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए अलग चांद है। तो जिस मुल्क में जिस दिन चांद निकले, चांद की रुयत का जब यकीन हो जाए तो उस मुल्क के लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो चांद देखकर रोजा रखे और चांद देख करके ही रोजा को तोड़े। किसी और मुल्क की रुयत का एतबार नहीं होगा। मिसाल आदमी ये ना कहे कि सऊदी वालों ने देख लिया और हमने नहीं देखा है, तो सऊदी वालों ने देखा तो जिस दिन वो रोजा रखेंगे हम उस दिन रोजा रखेंगे, ये नहीं सही है। क्यों? आइए हदीस से देखते हैं। सही मुस्लिम की सही रिवायत है 1087 नंबर की। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को नकल करने से पहले जो चैप्टर का उन्वान, मौजू और जो टॉपिक लिखते हैं वो टॉपिक इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस तरह से लिखते हैं, बाबू बयानी अन्ना लिकुल्ली बलदिन रुयतहुम व अन्नहुम इज़ा रअउल हिलाल बिबलदिन ला यसबुतु हुक्मुहु लिमा बउद अन्हुम। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह कहते हैं इस बात का बयान कि हर शहर के लिए अलग अलग रुयत है होगी, हर शहर के लिए, हर मुल्क के लिए अलग अलग रुयत होगी।
جب ایک شہر والے ایک ملک والے چاند دیکھ لیں تو اس سے ان لوگوں کے لیے حکم ثابت نہیں ہوگا جو دوسرے شہر والے ہیں جو اس سے دور ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہر ملک کے لیے اپنی چاند کا ہی اعتبار ہوگا۔ یہ خلاصہ کلام ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، کہتے ہیں قریب رحمہ اللہ، یہ قریب امام مسلم رحمہ اللہ کے معتبر ثقہ راویوں میں سے ایک راوی ہیں قریب، جو تابعی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملک شام بھیجا۔ شام بھیجا انہیں قریب کو۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں شام گیا اور میں نے ان کا کام مکمل کیا، جس کام کو جو ذمہ داری انہوں نے مجھے دی تھی میں وہاں پہنچا اور اس کام کو میں نے مکمل کیا، اور میں نے جمعہ کی شب کو یعنی جمعرات کے دن مغرب کے بعد انہوں نے رمضان کا چاند دیکھا۔ پھر مہینے کے آخر میں وہ مدینہ آئے۔ جب یہ مدینہ آئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے پوچھا اور چاند کا ذکر کیا کہ آپ نے چاند کب دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کی شب کو چاند دیکھا ہے، ہم نے جمعہ کی شب کو چاند دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے خود دیکھا؟ کس نے؟ عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کیا تم نے خود دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا اور دیگر لوگوں نے بھی دیکھا اور سب نے روزہ بھی رکھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا لیکن ہم نے تو ہفتہ کی شب کو دیکھا، یعنی جمعہ کے بعد سنیچر، جمعہ کے بعد پھر مغرب کے بعد دن چینج ہو جاتا ہے عربی کے اعتبار سے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ہفتہ کے دن یعنی سنیچر کی شب کو ہم نے چاند دیکھا اور ہم اس کے بعد ہم روزہ رکھتے رہے یہاں تک کہ ہم 30 دن مکمل کر لیں گے۔ کہا کہ ہم نے سنیچر کو یہ شب کو دیکھا ہے، اب ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم 30 مکمل کر لیں۔ یہیں پر ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے ان کی رویت کا، ان کے چاند دیکھنے کا اعتبار نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ارے بھائی آپ شام گئے تھے، سیریا گئے تھے، آپ نے ایک دن پہلے ہم سے دیکھا تو ہمارا ایک دن کا روزہ چھوٹ گیا۔ نہیں کہا آپ دیکھیں شام، وہاں کا جو مطلع ہے وہ الگ ہے اور یہاں کا مطلع الگ ہے، ہم نے ایک دن بعد میں دیکھا ہے اس لیے ہم 30 دن مکمل کریں گے۔ تو اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مطالع مختلف ہوتے ہیں، ہر جگہ کا ایک ہی چاند معتبر نہیں ہوگا، ہر ایک جگہ کا ایک ہی چاند معتبر نہیں ہوگا۔ یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دور دراز علاقوں میں چاند دکھنے سے روزے کا، عید کا، لیلۃ القدر کا بھی فرق پڑ سکتا ہے؟ بھئی روزہ تو فرق ہو گیا، آپ ایک دن پہلے رکھ رہے ہیں، ہم ایک دن بعد رکھ رہے ہیں، عید آپ ایک دن پہلے کر رہے ہیں، ہم ایک دن بعد کر رہے ہیں، تو کیا لیلۃ القدر پر بھی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے؟ کیا لیلۃ القدر پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے؟ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک رات ہے اور وہ رات ایک ہی ہے، پوری دنیا کے لیے وہ ایک ہی رات ہے، ایک ہی دن ہے۔ تو اس مسئلے میں صحیح موقف یہ ہے کہ بلا شبہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ الگ الگ ہے، ہر ملک کے لیے الگ الگ ہے، ایک رات نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، ينزل ربنا تبارک وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر رات اللہ رب العالمین اپنے عرش سے سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے، اللہ نزول کرتا ہے ہر رات۔ کب؟ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تب اللہ سمائے دنیا پہلے آسمان پر آتا ہے۔ تو اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے، آنے کی کیا کیفیت ہے؟ کیا اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے نزول کرتا ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین اپنی شایان شان کے مطابق جیسا اللہ کے لیے
لائق ہے، اللہ اسی اعتبار سے سمائے دنیا پہلے آسمان پر اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہر رات آتا ہے۔ ہمارے یہاں رات ہے تو کہیں اس وقت دن ہوگا، کبھی ہمارے یہاں بھی شام ہوئی ہے، کہیں صبح ہوئی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں رات ہوتی ہے وہاں رات کے اعتبار سے اللہ وہاں نازل ہوتا ہے، جہاں دن وہاں اللہ کی تازمی۔ تو رات الگ الگ ہے، تو ایسے ہی شب قدر کا جو بھی مسئلہ وہ بھی الگ الگ ہے، الگ الگ، ایک جیسا نہیں۔ دوسری بات، صوم کے روزے کی چند فضائل کا تذکرہ ہوا تھا، جس میں پہلی فضیلت میں نے یہ بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے روزے دار کے لیے اپنی بخشش کا اور اجر عظیم کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ اللہ نے کہا والصائمین والصائمات، پھر آگے اللہ نے کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے اپنی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ ایسے ہی ایک فضیلت یہ بھی گزری ہماری نظروں سے کہ روزے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے۔ تقوی، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس سے وہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، گناہوں سے بچنے والا بن جاتا ہے، اور اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تیسری فضیلت یہ ہے یہ روزہ رکھنے والے کے لیے جہنم سے ڈھال اور محفوظ قلعہ، یہ بھی حدیث ہماری نظروں سے کل کے درس کے اندر گزری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، صوم یعنی روزہ یہ ڈھال ہے، جہنم سے حفاظت کے لیے محفوظ قلعہ ہے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ گویا کی محفوظ قلعے میں ہے، وہ جہنم تک نہیں پہنچ سکتا، جہنم سے وہ محفوظ رہے گا۔ چوتھی فضیلت یہ ہے روزہ یہ انسان کی شہوتوں پر کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کل کے درس میں بیان کیا، امام بیضاوی رحمہ اللہ نے لعلکم کی تفسیر جو کی اس کی یہی کی کہ یہ روزہ جو ہے انسان کی شہوت کو توڑ دیتا ہے، اور جب روزہ شہوت کو توڑتا ہے تو شہوت ہی انسان کو گناہ کے کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ تو جب انسان کا اپنے شہوت پر کنٹرول ہوتا ہے تو انسان گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ روزہ انسان کی شہوتوں پر کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم وصیت، جسے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کا مثیل اور جس کا بدیل کوئی نہیں، روزے کے جیسا کوئی عبادت نہیں اور اس کے جیسا کوئی بدل ہے ہی نہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول مرنی بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ، اے اللہ کے رسول مجھے ایسی بات کا حکم دے دیجئے جس سے اللہ رب العالمین مجھے نفع پہنچا دے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے کہا علیک بالصیام فإنہ لا مثل لہ، اے میرے صحابی تمہارے اوپر یہ چیز لازم ہے، تم روزے کو لازم پکڑ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهَا، اس لیے کہ اس کے مثل کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا یہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم وصیت ہے، وہ وصیت یہ ہے کہ اس کے مثل پھر اور کوئی عبادت نہیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں بندے کو اجر و ثواب دیتا ہوں۔ کتنا اجر و ثواب دیتا ہوں کسی کو علم نہیں، کسی کو علم نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری روایت کے اندر حضرت ابو امامہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول بتائیے کون سا عمل دین اسلام میں سب سے افضل ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے کہا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، صوم کو روزے کو لازم پکڑو کیونکہ اس کے برابر کوئی اور چیز نہیں۔
छठी फजीलत यह है, रोजा ये वो अमल है जिस अमल के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में एक खुसूसी गेट और दरवाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया। जन्नत में कुल कितने दरवाजे हैं? कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। और जहन्नम में कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं। जहन्नम के 7 और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। उन 8 दरवाजों में से एक स्पेशल गेट अल्लाह ताला ने रोजेदारों के लिए अल्लाह ताला ने खास कर रखा है। उस गेट का नाम है बाबुर रैयान। बाबुर रैयान। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन्ना फिल जन्नति बाबन युकालु लहू अर्रैयानु यदखुलु मिनहु मुस्साइमून यौमल क़ियामह। जन्नत में एक खुसूसी दरवाजा है जिसका नाम अर्रैयान है। क़यामत के दिन उस दरवाजे से रोजा रखने वाले ही दाखिल होंगे, कोई और उस दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकता है। स्पेशल गेट अल्लाह ताला ने इस अमल के करने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है। इससे पता चलता है कि इस अमल की कितनी अहमियत शरीयत इस्लामिया के अंदर। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं कि ला यदखुलु मिनहु अहदुन गैरुहुम फइज़ा दखलू उग़लिक़ा। जब ये रोजेदार उन दरवाजों से दाखिल हो जाएंगे जन्नत के अंदर, वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर और किसी के लिए वो दरवाजा नहीं खोला जाएगा। सही बुखारी की एक रिवायत के अंदर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिल जन्नति थमानियतु अबवाबिन, फिल जन्नति थमानियतु अबवाबिन फीहा बाबुन मुसम्मा रैयानु ला यदखुलुहु इल्ला साइमून। सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी मौला ने कहा कि अल्लाह के नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। उन दरवाजों में से एक खास दरवाजा बाबुर रैयान नामी है, जिस दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ रोजेदार ही जन्नत के अंदर एंट्री करेंगे और दाखिल होंगे। 7वीं फजीलत, रोजा रखने वालों के लिए बेला हिसाब किताब अजर है। बेला हिसाब, हम शुमार ही नहीं कर सकते कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजा पर अजर और सवाब अल्लाह ताला ने मुरत्तब कर रखा है। ऐसे ही 8वीं फजीलत, सौम यानी रोजा रखने वाले के लिए 2 खुशियां हैं, एक दुनिया में और दूसरी आखिरत में। 9वीं फजीलत यह है, रोजेदार के मुंह की जो खुशबू है, रोजादार जब रोजा रखता है, खाली पेट होने की वजह से उसके मैदे से जो बू आती है उसके मुंह के जरिए, ये खुशबू अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मुश्क खुशबू से भी कई ज्यादा पाकीज़ा। इसको हदीस से देखते हैं, रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू इल्ला सियाम। इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोजा के। फ़इन्नहु ली, बंदा रोजा मेरे लिए रखता है, व अना अजज़ी बिही, और मैं ही उसे उसके इस अमल पर बदला देता हूं। वस्सियामु जुन्नतुन व इज़ा कान यौमु सौमि अहदिकुम फला यरफस वला यस्खब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई आदमी रोजा की हालत में हो, फला यरफुस वला यस्खब, तो क्या करे? तो ना वो फहश बात करे, ना ही शहवत वाली बात करे, ना ही झगड़ा करे, ना ही किसी से लड़ाई करे, ना ही ज्यादा चीखे और चिल्लाए। और अगर कोई उस रोजेदार से गाली गुलूज करे, बहस मुबाहिसा करे, उससे तकरार करे, उससे लड़ाई करे, शरीयत मुतहरा ने उसे कहा कि वो कहे सामने वाले से, इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूं, मैं तुझसे बहस नहीं कर सकता, मैं तेरे इसका बदला नहीं दे सकता है, मैं रोजे से हूं, मैं खामोश हूं। उसे खामोश रहना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद कहा, वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, लखलूफ फमिस्साइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा पाकीज़ा तर है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, लिस्साइमी फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशी के मौके हैं। एक खुशी का मौका उस वक्त है, यफरहुमा इदा अफ्तरा, जब वो इफ्तार करता है तो खुश होता है।
दिन भर रोजे से था, खाने से, पीने से और दीगर जायज चीजों से उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा। जब अफ्तारी करता है तो एक अजीब किस्म की फराहत और खुशी उसे मयसर होती है। ऐसे ही अल्लाह के नबी कहते हैं दूसरा मौका उस वक्त होगा वइज़ा लक़िया रब्बहु फरिह बिसौमिही, जब ये रोजेदार कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करेगा और अपने रोजे की नेकियां जब अपने नामे आमाल में देखेगा तो उस वक्त बहुत ही खुश होगा। दो खुशी के मौके, एक जब अफ्तारी बंदा करता है उस वक्त खुश होता है, और दूसरी खुशी कब होगी? जब हमारी और आपकी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात होगी, उस वक्त जब हम अपने नामे आमाल को पलटेंगे, देखेंगे और अजर सवाब देखेंगे, तब हम खुश होंगे। आगे चलें। 10वीं फजीलत यह है, ये रोजा क़यामत के दिन अपने रोजा रखने वाले के लिए सिफारिश करेगा, अल्लाह से शफाअत करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश करेगा। सही रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अस्सियामु वल कुरआनु यशफआनी लिल अब्दी यौमल क़ियामह, यक़ूलु अस्सियामु अय रब्बी मनातुहु अत्तआमा वश्शहवाति बिन्नहार फशफ़्फ़िनी फीही, व यक़ूलुल कुरआन मनातुहु अन्नौम बिल्लैली फशफ़्फ़अनी फीही क़ाल फयुशफ़्फ़अन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कल क़यामत का दिन होगा, बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोजा उसके अमल की शक्ल सूरत में खड़ा होगा रब्बुल जलाल के सामने, और ऐसे ही कुरान अल्लाह के सामने हाजिर होगा। ये रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने रोजेदार के हक में कहेगा, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मनातुहु अत्तआम वश्शहवात बिन्नहार, ऐ अल्लाह मैंने इस तेरे बंदे को दिन के अंदर खाने से रोक रखा, मैंने इस तेरे बंदे को हर किस्म की जायज शहवतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने रोके रखा। ऐ अल्लाह इस बंदे के हक में अल्लाह मेरी सिफारिश को कबूल फरमा ले। ऐसे ही कुरान करीम भी अपने पढ़ने वाले के हक में सिफारिश करेगा, अल्लाह से कहेगा, ऐ अल्लाह मनातुहु अन्नौम बिल्लैल, ऐ अल्लाह मैंने तेरे फला बंदे को रात में सोने से मैंने रोके रखा। रात में दुनिया ख्वाबे खरगोश में सोई हुई थी, लोग खर्राटे की नींदें ले रहे थे, तेरा ये फला बंदा था, उठता था, वजू करता था, तेरे कलाम को खोलता था और तिलावत करता था। ए अल्लाह मैंने इसको सोने से रोके रखा, ए अल्लाह इस बंदे के हक में मेरी सिफारिश को कबूल कर ले। अल्लाह दोनों की सिफारिश को कबूल कर लेगा, रोजे की और ऐसे ही कुरान की सिफारिश को भी कबूल कर लेगा। ऐसे ही 11वीं फजीलत यह है, साइम की दुआ, रोजा रखने वाले की दुआ रब के बारगाह में रद्द नहीं की जाती है। रोजा रखने वाले की दुआ रद्द नहीं की जाती है। दलील अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुमुस साइम, 3 किस्म के बंदे ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में रद्द नहीं होती है। उन्हीं में से एक बंदा वो है जो रोजा रखता है। हम रोजेदार हैं, रोजे की हालत में है, हमें अपने पूरे रोजे की हालत में फजर से लेकर के गुरूब शम्स तक, अफ्तारी करने तक अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजेदार की दुआ को रद्द नहीं करता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल करता है। तो इस हदीस से पता यह चलता है कि रमजान का मौका अगर हमें अल्लाह की तौफीक से मिल जाए तो हमें इसको गनीमत जानते हुए, लायानी काम से इश्तराक करते हुए अपने जबान पर दुआए कलिमात और इस्तिग़फ़ार वाले विर्द जारी रखना चाहिए, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर कहा, ला युबद्दलुल क़ौलु लदैया, हमारे यहां बात बदली नहीं जाती। अल्लाह ने फैसला कर दिया कि रोजेदार की दुआ को हम कबूल करेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा। हमारा और आपका इस बात पर ईमान होना चाहिए, हमारा ईमान होना चाहिए। ऐसे ही 12वीं फजीलत, रोजा इफ्तार कराने का अज्र रोजा रखने वाले की मिस्ल है। हम रोजा रख रहे हैं, खुद सवाब कमा रहे हैं, ऐसे ही अल्लाह ने हमको माल दिया है, दौलत दिया है, हम साहिब हैसियत हैं, हम रोजा किसी को अफ्तार करा सकते हैं तो हमें करानी चाहिए।
क्यों? उसका अज्र जितना रोजेदार को मिलेगा उतना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके भी नामे अमाल में लिख देगा। हाँ, रोजेदार की नेकी में कोई कमी नहीं की जाएगी। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन फत्तर साइमन कान लहू मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइम शैया। ये तिर्मिज़ी की रवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया, किसको? रोजेदार को। शर्त क्या है? रोजेदार को इफ्तारी कराना है। समाज में इलेक्शन का पीरियड जब आता है, ये सियासी लीडरान अफ्तारी कराते हैं, कोई भी आए, ऐरू गैरू नत्थु खैरू, मुस्लिम गैर मुस्लिम काफिर बद्दीन फासिक फाजिर कोई भी आता है और उम्मीद होती है कि हम सब लूट लिए। नहीं, नबी ने कहा, मन फत्तर साइमन, मन जो रोजेदार को इफ्तारी कराए, कान लहू मिस्लु अजरिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसी के जैसा अजर और बदला देता है। सर उसके रोजेदार की नेकी में कोई कमी नहीं होती। हाँ, इफ्तारी करा रहे हैं, कोई एडवर्टाइज नहीं होना चाहिए, कोई शोहरत ना हो। ये नहीं कि एक तरफ ये रोजेदार अपने मुंह में खजूर का नेवाला तोड़ता है और उधर से आप ले लेते हैं। ये इखलास वाला नहीं इफ्तारी कराना है। ये तो सोशल मीडिया पर आप अपना एडवर्टाइज कर रहे हैं कि फला साहब ने इफ्तारी कराई, इतने लोगों के लिए इफ्तारी कराए। ऐसे लोगों को अजर नहीं मिलने वाला है। कल क़यामत का दिन होगा, रब्बुल जलाल के सामने इस तरह के लोग आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, जाओ उन लोगों से बदला ले लो जिन लोगों के दिखावे के लिए तुम दुनिया के अंदर अमल कर रहे थे। जाओ, अगर कुछ पाते हो उनके पास कुछ ले लो। कोई देने वाला होगा? कोई देने वाला नहीं। इसलिए शरीयत का हर अमल हमसे इखलास का मुतालबा करता है। अगर इखलास के साथ हम किसी को इफ्तारी करा रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल करम से हमारे नामे अमाल में उस रोजे रखने वाले के बराबर अजर सवाब देगा। ये चंद फजीलतें थी रोजे की। अब चंद फजीलतें चंद मिनट में हम बयान करना चाहते हैं माह रमजान की। माह रमजान की पहली फजीलत यह है कि इसी महीने में कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब का नुज़ूल हुआ है। कुरान करीम का नुज़ूल इसी मुबारक महीने के अंदर हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीही कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। अल्लाह ताला ने कहा, इसी रमजान के महीने में हमने कुरान करीम को उतारा। यही वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल किया गया। वो कुरान करीम जो लोगों को हिदायत करने वाला है, हिदायत का रास्ता दिखलाने वाला है। वो कुरान करीम जो हक और बातिल के दरमियान तमीज और फर्क करने वाला है। कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। कुरान आया और इस कुरान ने हक और बातिल के दरमियान तमीज कर दिया। गोया कि कुरान करीम से अगर हमारा राबता रहेगा, कुरान करीम से अगर हमारा ताल्लुक रहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस कलाम की तलावत और उसमें गौर व फिक्र करने की वजह से हमें बहुत बड़ा मलका दे देगा। वो मलका क्या होगा? हक और बातिल के दरमियान तमीज करने का फर्क और मलका अल्लाह रब्बुल आलमीन दे देगा। आज हमें हक और बातिल की तमीज नहीं, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमारा ताल्लुक कुरान से नहीं है। वरना कुरान के नुज़ूल के असबाब और हिकमतों में से हिकमत यह है कि यह कुरान हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली किताब। आगे चले, अल्लाह ने कहा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। जहां ये कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ, वहीं पर यह कुरान लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ। किस महीने में? रमजान के महीने में। कौन सी रात में? लैलतुल क़द्र में इस कुरान का नुज़ूल हुआ है। कितने मुद्दत में कुरान नाजिल हुआ? कितने साल में कुरान का नुज़ूल हुआ? 23 साल। बारकल्लाहु फीकुम। 23 साल में कुरान का नुज़ूल हुआ। 13 साल मक्का की जिंदगी, 10 साल मदनी जिंदगी, कुल मिला के 23 साल की मुद्दत में इस पूरे कुरान का नुज़ूल हुआ, जो आज हमारे और आपकी नजरों में मसाहिब की शक्ल में 30 पारे में मौजूद है। 23 साल लग गए इस कुरान को नाज़िल होने में। एक रिवायत के अंदर मिलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अलावा, कुरान के अलावा जो दीगर आसमानी किताबें हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है,
इनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी माह के अंदर नाजिल किया है। इसी माह में अल्लाह ताला ने इनको भी नाजिल किया। ये जो है मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, ये माह इब्तिदाए दुनिया की जब शुरुआत हुई है उसी वक्त से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये 12 महीने बयान किए। ये बातें इंशाअल्लाह और कभी और मौके पर बयान करेंगे। तो बास रिवायतों के मुताबिक दीगर आसमानी किताबें और सहीफे भी इसी माह में उतारे गए। दूसरी फजीलत इस महीने की यह है, रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन और सर्कस जिन्न को कैद कर दिया जाता है। आसमान के दरवाजे इसी तरह रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, या बागियल खैर अक़बिल व या बागिय शर्र अक़सिर, ऐ खैर के तलब करने वाले खैर की तरफ बढ़, ऐ बुराई के तलब करने वाले रुक जा, अब बस कर। ये सातवीं फजीलत ये है, रमजान की हर शब में अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुतों को जहन्नम से आजाद कर देता है। जहां दिन के बारे में अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मोमिन की दुआ, रोजेदार की दुआ हालत रोजा में रद्द नहीं होती, वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन रात की फजीलत बयान करते अल्लाह के रसूल ने कहा कि रात में अल्लाह बहुत से उन लोगों को जिनका नाम जहन्नमियों की फेहरिस्त में था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका नाम जहन्नमियों के लिस्ट से हटा करके जन्नती में कर दिया। ये हर रात अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है। यहां पर एक सवाल पैदा ये होता है, उन्हीं साहब कहते हैं कि सारे शैतान जकड़ दिए जाते हैं, बांध दिए जाते हैं, तो फिर आपस में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कहां से होता है? इंसान गुनाह कहां से करता है? सवाल यह पैदा होता है, क्या सारे शैतान सारे जिन्न कैद कर दिए जाते हैं? जवाब इसका यह है, नहीं, सारे शैतान सारे जिन्न कैद नहीं किए जाते हैं, बल्कि हदीस के जो अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं मरदतुल जिन्नी, सर्कस जिन्न को, सर्कस शयातीन को अल्लाह जकड़ता है, ला जमी अश-शयातीन, तमाम शैतानों को अल्लाह नहीं करता है। वरना देखते हैं मस्जिद की का मामला हो, गर्मी का सीजन हो, एसी कोई चालू करता है, कोई बंद करता है, वो उसको गाली देता है, वो उसको मारता है, पंखा कोई चालू करता है, उधर बंद कर देता है, इसमें इनमें लड़ाई हो जाती है। तो ये लड़ाई जो कराता है, कौन कराता है? शैतान कराता है। बताइए जरा, सारे शैतान नहीं बंद होते हैं, जो सर्कस किस्म के होते हैं वो बंद किए जाते हैं। इसकी भी दलील अगर देखना है तो आइए एक हदीस को देख लेते कि सारे शैतान नहीं बंद होते हैं, सर्कस लोग ही बंद होते हैं। दलील सही बुखारी की 1996 नंबर की रिवायत, अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अय्युहन्नास इन्नहा कानत उदीनत ली लैलतुल क़द्री व इन्नी खरजतु लिउखबिरकुम बिहा फजा रजुलानी यहतक़ानी माहुम अश-शैतानु फनुसीतुहा। कहते हैं अल्लाह के रसूल कि ऐ लोगों, शब कद्र की पहचान मुझे करा दी गई थी, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से यह बतला दिया गया था कि शब कद्र, कद्र वाली रात कौन सी है, उसकी अलामत, उसकी पहचान मुझे बतला दी गई थी। मैं निकला हुआ था ताकि मैं अपनी उम्मत के लोगों को बतला दूं कि कद्र वाली रात कौन सी है। लेकिन मामला क्या हुआ? फजा रजुलानी यहतक़ानी माहुम अश-शैतान, दो लोग लड़ रहे थे आपस में और उन दोनों के साथ शैतान भी था, उन दोनों के साथ शैतान भी था। इस रिवायत के इस्लाम से पता चलता है सारे शैतान जकड़े नहीं जाते हैं, जो सर्कस किस्म के होते हैं वही शैतान जकड़े जाते हैं, वही शैतान जकड़े जाते हैं। आठवीं फजीलत यह है इस महीने की, इस महीने में एक रात ऐसी रात है जो 1000 महीनों की रातों से बेहतर और अफजल है। कौन सी रात है? शब कद्र वाली रात है। जिस कद्र वाली रात को आज की ये उम्मत और खुसूसन न्यू जनरेशन लहूलाइन में खाने पकाने में और दीगर खुर्दोनोश की चीजों को मसाजिद में तकसीम करने में ये जनरेशन गवा देती है ना। हाँ, कहीं वहां बट रहा है शीरीनी, तो वहां बट रहे हैं हलीम, तो वहां बट रहा है कुछ और, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ी अजीम रात है। और यहीं पर एक नुक्ता ये भी बताओ, ये रात जो है ये मुकम्मल रात होती है। क्या मुकम्मल रात होती? कोई एक घड़ी, एक वक्त, एक लम्हा नहीं होता, पूरी रात होती है शब कद्र वाली रात। लोगों ने
आपने सुना होगा कि ये कद्र वाली रात होती है, कोई एक घड़ी होता है, इसलिए हमें लगातार इबादत करना चाहिए। नहीं, इसमें आप थोड़ा इबादत भी करिए, थोड़ा आप रेस्ट भी करिए, फिर थोड़ा सा जब नशीद चाको चौबंद हो जाए फिर दिल जमाई के साथ अल्लाह की इबादत करें और अपनी माफी अल्लाह ताला से माफी मांगे। ये चंद फजीलतें थी, और भी फजीलतें हैं। अच्छा, यहीं पर 5 मिनट में आपका ज्यादा आगे दूंगा ताकि हमारी जो बात है वो खत्म हो जाए। एक फजीलत ये भी है कि माह रमजान में बंदों के गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, अस्सलवातुल खम्सी वल जुमुअतु इलल जुमुअति व रमज़ानु इला रमज़ान मुकफ्फरातुन मा बैनहुन्ना इज़ा तनवल कबाइर। कहते हैं कि 5 नमाज, एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच जो हम गुनाह करते हैं, फजर मगरिब की नमाज में नहीं पढ़ी, अब इशा की नमाज पढ़ेंगे, इस दरमियान हमसे जो गुनाह हुई माफ हो जाता है। ऐसे ही एक जुमा से लेकर के दूसरे जुमा तक, ऐसे ही एक रमजान से लेकर के दूसरे रमजान तक जो गुनाह हम करते हैं ये हमारे लिए कफारा बन जाता है। यहां पर एक सवाल है, क्या ये जो गुनाह माफ होते हैं ये कबीरा गुनाह माफ होता है या सगीरा गुनाह माफ होता है? बोलिए। सगीरा, छोटे छोटे गुनाह माफ होते हैं, कबीरा गुनाह माफ नहीं होता है। कबीरा गुनाह के लिए तौबा शर्त है, तौबा शर्त है। आप रोइए, गिड़गिड़ाइए, माफी मांगिए। अच्छा, कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह का ताल्लुक जो है हुकूकुल्लाह से है और एक गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। अगर हुकूकुल्लाह से उसका ताल्लुक है तब तो रोने गिड़गिड़ाने से माफ हो जाएगा, लेकिन अगर उसका ताल्लुक बंदे से है, बंदे का हक मारा है, बंदे को गाली दिया है, बंदे के ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह के बारगाह में आप रो रहे, गिड़गिड़ा रहे हो और बंदे के हक को आप अदा नहीं कर रहे हैं, बंदे से माफी नहीं मांग रहे हैं, तो क्या माफ हो जाएगा? वो तौबा से भी माफी, तौबा से माफी। हाँ, ये अपनी जहन में अभी रख लीजिए। और अगर हमारा किसी से कुछ अनबन है, हमारा किसी से कुछ मसला है, रमजान की आमद से पहले इस सारा मसला क्लियर कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। और भी बहुत सारी फजीलतें इंशाल्लाह आपके इमाम साहब जुमा में इस सारी चीजों को बयान करेंगे। एक अहम नुक्ता मैं बयान करना चाहता हूं। रोजा के कुछ मकासिद और कुछ मसलहतें। एक मकसद तो ये है तकवा का हुसूल, ताकि मुसलमान क्या हो जाए? मोमिन, रोजेदार, मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला बन जाए। दूसरा जो अहम मकसद है वो नफ्स का तज़किया, इंसान का नफ्स पाक और साफ हो जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, मन लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही वल जहल फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबहु। जो झूठ बोलना ना छोड़े, जो जहालत वाले काम ना छोड़े, ऐसे बंदे के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। ऐसे बंदे के रोजा रखने का कोई फायदा नहीं। जो झूठ बोलना ना छोड़े, कबीरा गुनाह ना छोड़े और ऐसे ही जहालत वाले काम ना छोड़े, ऐसे बंदे का कोई फायदा नहीं। ऐसे ही एक रिवायत के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रुब्ब साइमिन हद्दुहु मिन सियामिही अल-जू वल अब्स। क़यामत का दिन होगा, बहुत सारे ऐसे रोजेदार होंगे जिन्हें उनके रोजे का से क्या हासिल हुआ? सिर्फ भूख और प्यास। भूख और प्यास के सिवा उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं। और कितने ही क़ियामुल लैल, तहज्जुद गुज़ार, तरावीह पढ़ने वाले ऐसे होंगे जिन्हें उनके क़ियामुल लैल का सिर्फ रात जगना ही फायदा उनको हुआ, बाकी कोई नेकी, कोई अजर सवाब को नहीं मिलेगा। क्यों? अमल में इखलास नहीं, अमल में इखलास नहीं, अल्लाह की रज़ाजोई का उसूल नहीं, इसलिए ऐसे लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। और ऐसे ही एक अजीम जो मसलहत है रमजान के रोजे की फर्जियत का, वो ये है फुकरा और मसाकीन पर रहम और शफ़क़त। अल्लाह ने हमको दिया है, हमारे अफ्तारी के सहन और प्लेट में 5-5, 6-6 किस्म के फल होते हैं। हमारा पड़ोसी है, गरीब है, मिस्कीन है, बच्चे देख रहे हैं, हमारा पड़ोसी है, उसके बेटे खा रहे हैं, रोजाना गोश्त है, मछली है, बिरयानी है, कबाब है, ये सारी की सारी चीजें उठा रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक गरीब बच्चा है जिसके घर फल नहीं है, सादे पानी से भी वो इफ्तारी करते हैं। शरीयत मुतहरा ने आपके अंदर एहसास पैदा करने के लिए रोजे को फर्ज किया है, ताकि आपके दिल के अंदर एहसास हो कि बेचारे कैसे भूखे प्यासे रहते होंगे, कैसे रहते होंगे।
आज 12 घंटे 13 घंटे का रोजा है, एक अमीर आदमी एयर कंडीशन रूम में रह करके अपने को गुजार देता है। शरीयत आपको ये एहसास दिलाती है कि देखो बेचारे कितने मुसलमान ऐसे हैं जो रोजे की हालत में हैं, मजदूरी कर रहे हैं, धूप की तपिश में जल रहे हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजा। ये एहसास दिलाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर रोजे को फर्ज किया, हमारे ऊपर रोजे को फर्ज किया। आखिरी बात यह है, रोजा रखने से हमारा क्या फायदा है? और हमारा अपने बॉडी का भी फायदा है, हमारे और आपके बॉडी का भी फायदा है। रोजा रखने से इंसान सेहतमंद होता है, इसलिए कसरत से हमको रोजा रखना चाहिए। साइंस ने आज इसको प्रूव किया है कि अगर आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हर हफ्ते 2 रोजा रखे ना, तो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेगा, बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेगा। एक वाकया बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं। कौन, किसका वाकया है? इमाम अलबानी रहमतुल्लाह का वाकया। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी बीमारी के अंदर मुब्तला था। इलाज और मुआवजा के लिए मैं बहुत सारे डॉक्टरों, हकीमों और अतिब्बा के पास पहुंचा, लेकिन कहीं मुझे शिफा नहीं मिली। क्या किया? 40 दिन तक मैं मुसलसल भूखा रहा। 40 दिन तक मुसलसल भूखा रहा। उस दौरान मैंने कोई चीज नहीं खाई सिवाय पानी। पानी पीता रहा और दीगर कोई खाने वाली चीज मैंने हाथ नहीं लगाया। उसका फायदा यह हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे उस बीमारी से शिफा दे दिया, उस बीमारी से शिफा दे दिया। तो जहां ये रोजा हमारी उखरवी जिंदगी के लिए बहुत सारी सआदतों से भरा पैगाम लेकर के आने वाला है, वहीं पर ये रोजा हमारी दुनियावी जिंदगी के लिए बहुत भी मुफीद है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इलाही आलमीन हम तमाम लोगों को ये रोजा मुफीद करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को ये रोजा रमजान मुबारक का महीना नसीब करे। हमें और आपको दुआ भी करना चाहिए, रमजान की आमद से पहले दुआ करना चाहिए। हमारे असलाफ जो थे, मिलता है उन लोगों के बारे में 6 महीना पहले अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह मुझे रमजान नसीब फरमा। पता नहीं हम में से कितने लोग हैं जिसको मिले रमजान का महीना या किसी को ना मिले। इसलिए हमें और आपको दुआ करते रहना चाहिए। सहाबा असलाफ 6 महीना पहले दुआ करते थे, और जब रमजान गुजर जाता था तो 6 महीना तक अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह रमजान में की गई नेकियों को अल्लाह कबूल फरमा ले। ये इसकी दुआ करते थे। तो जहां आने की दुआ, मिलने की दुआ करना है, वहीं पर हमें मिलने के बाद जो नेकियां उसको कबूल करवाने के लिए भी हमें दुआ करना है। अल्लाह ताला से दुआ है इलाही आलमीन हमें किताब और सुन्नत की रोशनी में हमने जो कुछ सुना है, अल्लाह ताला तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। क़ुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम सालिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।